If you have your Bibles, we are coming to the end of the book of Philippians. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो हम फिलिपियों की किताब के अंत में अब पहुंच गए हैं। Yeah, this is the second last preaching from that book. और शायद ये आखिरी से पहले का एक स्तर होगा प्रचार उस किताब से। Errol started it, so Errol will end it. तो एरल ने शुरुआत की थी तो एरल उसको अंत करेंगे अगले हफ्ता। Okay, if you have, please open with me to Philippians chapter 4, verse 4 to 13. अगर आपके पास आपका बाइबल है तो फिलिपियों के 4 अध्याय वचन 4 से 13 को आप मेरे साथ खोलिए। Okay, I will just quickly read it. मैं जल्दी से ही उसे पढ़ूंगा। It says, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." और वहां पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। Verse 5, "Let your gentleness be evident to all. The Lord is near." वचन 5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Verse 8, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." और वचन 8, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। Verse 9, "Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you." वचन 9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Verse 10, "I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying that because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances." वचन 10, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं। Verse 12 and 13, "I know what it means to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength." वचन 12 और 13, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. Amen. Yeah, Paul has come to the end of this letter. और पौलुस इस पत्रिका के अंत तक पहुंच गया है। This letter is a thanksgiving letter to the church in Philippi. और यह जो खत है वो फिलिपाई में जो कलीसिया है उसे धन्यवाद करने के लिए Because है, they have sent a gift to him to look after his needs. क्योंकि उन्होंने उसे एक तोहफा दिया है ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। So if you remember how I began from the book of Philippians chapter 1.
और अगर आपको याद है मैंने कैसे शुरुआत किया फिलिपियों की किताब से पहले अध्याय से, And we began by sharing about Christian maturity. और हमने मसीह परिपक्वता के बारे में कहते हुए शुरुआत की थी। And even as he ends the Bible, ends, just a minute, yes, put the, yeah, even as he ends the book, he again brings up the Christian maturity, the theme of Christian maturity. और जैसे वह किताब का अंत करता है, वहां पर भी वह मसीह परिपक्वता के बारे में बात करता है। Yeah, the transformation and change behavior of Christians. और मसीह लोगों का जो परिवर्तन होता है और उनके बर्ताव में बदलाव आता है उसके बारे में। You know, this is what C.H. Spurgeon said. और C.H. स्पर्जन ने ये बात कही। He says, if your theology does not change your behavior, और अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे बर्ताव को नहीं बदलता है, it will never change your destiny. तो वह आपके मुकाम को कभी नहीं बदल पाएगा। Because when you read the Bible, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं and as you study the Bible, और जैसे आप बाइबल का अध्ययन it करते must हैं, change your behavior. तो आपका जो दिनचर्या है या बर्ताव है वो बदलना चाहिए। It must bring transformation into your life. और आपके जीवन में परिवर्तन होना Then चाहिए, your destiny will change. तब आपका मुकाम बदल If जाएगा। your behavior and if your character and is not transformed, और अगर आपका बर्ताव और आपका चरित्र परिवर्तित नहीं होता है, your destiny also will not change. तो आपका मुकाम भी नहीं So we बदलेगा। looked at individual maturity तो हम व्यक्तिगत परिपक्वता को देखते and हैं about the church maturity. और कलीसिया की परिपक्वता के If बारे you में भी remember हमने the बात की। definitions I gave, और अगर आपको याद है उसका जो व्याख्या I'll मैंने just दी थी, quickly take you through. और मैं जल्दी से ही आपके साथ बांटता हूँ। Who is a mature Christian? एक परिपक्व मसीह या ईसाई कौन A है? mature Christian is someone who knows his identity in Christ, और एक परिपक्व ईसाई वह है जो मसीह में अपनी पहचान को जानता growing in है the God-given gifts, और परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों में बढ़ता filled है with the Holy Spirit or filled with the fruit of the Spirit, और पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर है, and partnering other gifts in unity for building the church and being a true witness for Christ. और अन्य वरदानों के साथ भागीदारी करता है और सुसमाचार के साथ सुसमाचार के लिए वह सच्चा गवाह है मसीह के लिए। And we looked at what is a church, how a church can become mature. और हमने देखा कि कैसे एक कलीसिया परिपक्व हो सकती है। What makes a church mature? और एक कलीसिया को Next कौन सी one. बातें परिपक्व बनाती है? And it says a mature church is full of living saints, और ऐसा लिखा है कि परिपक्व कलीसिया जीवित संतों से भरी है, with elders and deacons, और जहाँ पर धर्मवृद्ध है, जहाँ पर in डीकन है, apostolic partnership for the advance of the gospel, और प्रेरित रूपी साझेदारी में काम करती है ताकि सुसमाचार की बढ़ोतरी हो and shalom in the city. और शहर में शालोम रहे। And these are principles what we looked at. और ये कुछ सिद्धांत है जो हमने देखे थे, And these are doctrines. और यह शिक्षा है, सिद्धांत And है। if you look at Paul's way of writing, और अगर आप पौलुस के तरीकों को देखते हैं वो there is कैसे a लिखा pattern है, in the way he writes. तो एक नमूना है, एक पैटर्न है जिस तरह से उसने लिखा You है। know, yesterday Timothy was asking, how many books Paul wrote in the New Testament? तो कल तिमिथी पूछ रहे थे कि नए करार में पौलुस ने कितनी किताबें लिखी, Almost half of the New Testament was written by Paul. और करीबन आधा नया करार जो है वो And he had पौलुस के द्वारा लिखी है। a pattern how he wrote. और एक तरीका था जिस तरह से वह लिखता He था, begins the letter with introduction and greetings, और वह परिचय देकर और अभिनंदन के साथ खत लिखना शुरू करता, and he shares the reason for writing that letter. और फिर आगे वो वजह लिखता कि क्यों वह खत लिख रहा है। Very often a body of truths, principle and gospel itself. और वहां पर सच्चाई और सुसमाचार शामिल है। And he ends with some practical stuff. और फिर कुछ
सुझाव जो वास्तविक है उसके साथ वो How do करता we है। live out these truths? और इन सच्चाई को हम कैसे लागू कर सकते हैं या जी सकते The हैं। how to, in the sense, these body of truth, how do we outwork in your और life? ये जो सच्चाई की देह है उसे हम जीवन में कैसे कर सकते हैं। Then he ends with greetings and benediction. और फिर से वह अभिनंदन के साथ और आशीर्वाद के साथ समाप्त For करता है। example, if you look at the book of Romans, और उदाहरण के तौर पर अगर आप रोमियो की किताब को देखेंगे chapter 1, verse 1 is the greeting. तो पहला अध्याय का पहला वचन अभिनंदन है। And chapter 1, verse 2 to chapter 11, verse 32, he explained what the gospel is. और अगर देखेंगे पहला अध्याय का दूसरा वचन और 11वां अध्याय का 32वें वचन वो सुसमाचार क्या है उसके बारे में बताता है। Full, all the chapters, वो 11 सारा chapters. वो सारे अध्याय He explained what is this gospel is all about. और वो बताता है कि ये सुसमाचार किस बारे में है। Then in chapter 12, 13, 14 and 15, he gives practical living of the gospel truth. फिर 12वें अध्याय और 13वें और 14वें 15वें अध्याय में और वो सुसमाचार की सच्चाई को हम कैसे वास्तविक रूप में जी सकते हैं उसके बारे में बताता And in है। chapter 16, he gives greetings to different people. और 16वें अध्याय में वो तरह तरह के लोगों को अभिनंदन दे रहा है। So 70% of his teaching is, or 70% of his book is about teaching and giving truths. तो 70% उसकी जो किताब है वो शिक्षा के बारे में है और सच्चाई को देने के बारे में And है। 25% is about practical outworking of the truth. और 25% वो सच्चाई कैसे वास्तविक रूप में की जा सकती है उसके बारे में And है। 5% is greeting and blessings. और 5% अभिनंदन है और आशीर्वाद है। And I feel there is a principle that we can follow in our own life. और मुझे लगता है एक सिद्धांत है जो हमारे जीवन में हम लागू कर सकते Even हैं। Jesus practiced that. और यीशु ने भी उसका प्रयास किया, वो So करता when रहा। someone comes to you for advice and counsel, 70% of your sharing must be the word of God, the truth. तो अगर कोई आपके पास सलाह लेने के लिए आता है, सुझाव के लिए आता है, तो 70% जो है वो वचन होना चाहिए आपके द्वारा और सच्चाई होनी And चाहिए। 25% should be, how do we do it practically? और 25% वह होना चाहिए कि हम उपयोगी रूप में या वास्तविक रूप में उसे And कैसे कर 5% सकते should हैं। be prayer and, encouragement. और 5% प्रार्थना होना चाहिए और प्रोत्साहन देना होना But very चाहिए। often it's the other way around. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका विपरीत होता है। 90% of the time we tell them what to do. और 90% हम उन्हें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। Yeah, do this way, then this will happen. Do that way, that will happen. If you look at the Bible, Jesus left things blank. He just left it, to people to come to a conclusion. और हम बताते हैं कि ऐसे करो ये हो जाएगा, वैसे करो वो हो जाएगा, लेकिन अगर यीशु को देखें तो यीशु ने उसे खाली रखा, उन्होंने लोगों पर छोड़ दिया कि वो पहचाने कि उन्हें क्या करना है। He gave parables and the disciples didn't understand. उन्होंने दृष्टांत दिए और चेलों को समझ नहीं आया। And he left it to the Holy Spirit to explain to them. और उसे पवित्र आत्मा पर यीशु ने छोड़ दिया कि पवित्र आत्मा उन्हें समझाएगा। And sometimes we got to leave it to people so that they get revelation from the Holy और Spirit. कभी-कभी हमें लोगों पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन And I पाएंगे। want to tell you, mothers and fathers, मैं आपको कहना चाहता हूँ माताएं और पिता, don't be over parenting your children. Do this, do that, do this, do that. Leave it to them and God. और ज्यादा अपने बच्चों को बताइए मत कि ऐसे करो वैसे करो, ये करना है वो करना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। Yeah, mothers are good. No, you tell them everything. You go down, you take a rickshaw, you give 40 rupees to go there. Then there is a tree there, and you wait at the tree. Somebody will come, and you go with that person. You don't need too many explanation. माँ ऐसा करती है, वहां जाना, वहां से रिक्शा लेना, 40 रुपया लेना, फिर वहां जाना, वहां पेड़ है, वो व्यक्ति से मिलना, उसे ये देना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। If you look at the Bible, Jesus loves to leave it blank.
और अगर आप बाइबल को देखेंगे तो यीशु उसे खाली छोड़ना पसंद करता है, because you get it from the Holy Spirit. क्योंकि आपको पवित्र आत्मा से मिलता है। Amen. आमेन। Yeah. And we got to let our children to find their own answers in God. और हमें हमारे बच्चों को छोड़ना चाहिए कि अपने उत्तर वो परमेश्वर से पा सके। Amen. Yeah, you got to let them live their lives with God. और आपको उन्हें परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। So we come to the end of Philippians that we just read. फिलिपियों के अंत में आते हैं जो आप हमने पढ़ा, And he gives them some practical tips on maturity. और कुछ वास्तविक सुझाव वह उन्हें देता है परिपक्वता को लेकर। He goes on to teach general practical things that will help us as Christians. और कुछ सामान्य वास्तविक चीजें हैं जो मददगार होगी मसीहों के लिए, वो बताता And है। I feel Errol has already touched upon two things. और मुझे लगता है एरल ने पहले से ही दो बातों के ऊपर बात की है Last time when he preached, गए बार जब but उन्होंने I प्रचार will किया, probably go through it again. लेकिन शायद मैं फिर से उसे दोहराऊंगा। What are these powerful truths? और ये सामर्थ्यशाली सच्चाइयाँ क्या है? I have 6 things. और मेरे पास 6 बातें हैं। First one, पहली बात, it says, rejoice in the Lord always. और वो ये है कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहे। I tell you, this is one of the most joyful book of the New Testament. मैं आपको बताऊं, नए करार की सबसे आनंद से भरी ऐसी किताब ये है, Because the word joy and rejoice comes almost 16 times in this book. क्योंकि ये शब्द हर्ष और आनंदित होना कम से कम ये 16 बार आती है It is इस किताब में। repeated again, rejoice in the Lord. और ये दोहराई गई है ये बात कि परमेश्वर And में again आनंदित I रहे। say और rejoice. मैं फिर से कहता Why हूँ don't you say to आनंदित the रहे। person next to you, rejoice in the Lord always? क्यों ना आप And आपके again I बाजू say में बैठे rejoice. व्यक्ति से कहे परमेश्वर में आनंदित रहे, और मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहे। Amen. I am not saying, the Bible is saying. मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल ये कहता है। And Paul is saying, get it right, rejoice, rejoice in the Lord. Always, again I say rejoice. और पौलुस कहता है इसे ठीक से समझ लो, परमेश्वर में आनंदित रहो, और मैं कहता हूँ हमेशा आनंदित रहो। But don't miss that 3 words. It says not, it doesn't say rejoice always. It says rejoice in the Lord always. लेकिन उस शब्द को मत कहो खोना, ऐसा नहीं लिखा है कि हमेशा आनंदित रहो, लेकिन ऐसा लिखा है कि हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो। Our joy comes from the Lord. और हमारा आनंद परमेश्वर से आता It है, is the fruit of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का फल है। Galatians chapter 5. गलातियों की किताब 5वां अध्याय। You know, joy is a person. और आनंद जो है वो एक व्यक्ति है। You know, Jesus is called the Prince of Peace. और यीशु को जो है वो शांति का When you राजकुमार talk कहा about गया है। peace and joy is a similar word. And if you want to have joy in your life, you want to have peace in your life, you need to have Jesus in your life. और आनंद और शांति एक ही शब्द जैसा है, और अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो आपको शांति की जरूरत है। You know, it says, somebody said, you know, peace is joy, peace is joy resting and joy is peace dancing. और किसी ने कहा कि शांति ऐसा है कि आनंद आराम कर रहा है, और आनंद ऐसा है कि शांति आराम कर रही है। नहीं dance कर रही है। नाच रही है, माफ करना। You understand? Okay, joy is peace. Peace is joy resting and joy is peace dancing. और शांति ये है कि आनंद जो है वो आराम कर रहा है, और आनंद ये है कि शांति नाच रही Because it है, is one and the same. क्योंकि वो दोनों एक ही साथ If you है, have एक peace, जैसे you है। will have joy. If you have joy, you will have peace. अगर आपके पास शांति है तो आपके पास आनंद होगा, अगर आपके पास आनंद है तो आपके पास शांति होगी। Happiness happiness is about something happens, you become happy. और खुशी का अर्थ ये है कि कुछ होता है और आपको खुशी होती है। Joy is not about when something happens, you become joyful. Joy is always there. और आनंद का अर्थ ये नहीं है कि कुछ होता
है और आप आनंदित होते हैं, आनंद हमेशा है। And God wants us to be joyful. और परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। How many people would like to know the will of God in your life? और आप में से कितने लोग परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं आपके जीवन के लिए? Yeah, you all want to know the will of God? आप सभी परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते Okay, हैं? let's read 1 आइए। Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. एक थिस्सलुनीकियों की किताब को पढ़ते हैं। If you can put that. 5वां अध्याय वचन 16 से 18। It says this. वहां ऐसा लिखा It है, says, rejoice always, ऐसा लिखा है, सदा आनंदित रहो, pray continually, लगातार प्रार्थना करते give रहो, thanks in all हर एक circumstances. स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। This is God's will for you concerning this is God's will for you in Christ Jesus. क्योंकि यह यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। Hallelujah. What is the will of God concerning you? और परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? Rejoice always. सदा आनंदित रहे, Pray continually. लगातार प्रार्थना करते Give रहे, thanks in all circumstances. और हर एक स्थिति में धन्यवाद करते रहे। Hallelujah. How do we do it practically? और औपचारिक रूप में, उपयोगी रूप में या वास्तविक रूप Because में कैसे Philippians करना है? chapter 3 verse 1, he says this, further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Then he goes on to say, how do we rejoice practically? और फिलिपियों के 3 अध्याय पहले वचन में लिखा है, आगे मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और वो कैसे करना है फिर वो One of the बताता way है। you rejoice is by understanding the grace of God. और एक तरीका जिससे हम आनंदित होते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं You know what Jesus has done for us. कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया The है, work of the cross. और क्रूस के कार्य को समझते हैं। That if you understand that we cannot add anything to his sacrifice and we cannot remove anything from his sacrifice, we will be thankful to God and we will be able to live in the grace of God. तो अगर हम समझ लेंगे कि उसके बलिदान से हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं या उसके बलिदान से हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर सदा धन्यवादित रहेंगे। We can only be thankful and accept this free gift of salvation. हम धन्यवादित ही रहेंगे और उद्धार के इस मुफ्त दान को हम स्वीकार And करेंगे the robe of righteousness. और उस धार्मिकता के वस्त्र को ले लेंगे। You know, grace releases us from performance. और अनुग्रह जो है वो प्रदर्शन से हमें छुटकारा देता है। You know, the world wants us to perform all the time. और संसार चाहती है कि हम हमेशा प्रदर्शन करते रहे, But the Bible is not about performance. लेकिन बाइबल प्रदर्शन के बारे में नहीं है। Bible is about acceptance or what Jesus has already done for us. और बाइबल इस बारे में है कि स्वीकार करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है। We can be ourselves. और हम जैसे हैं We वैसे don't हम हो need to सकते put हैं। on anything. हमें कुछ पहनने की We जरूरत don't need to नहीं है। impress God or man. और परमेश्वर को खुश करने की या मनुष्य को खुश करने की जरूरत We नहीं just है। have to accept what he has done on the cross. बस जो उसने क्रूस पर किया उसे स्वीकार करने की जरूरत है। Hallelujah. Amen. Imagine tomorrow someone gets a lottery. और कल्पना करिए कि कल किसी को Wins the लॉटरी मिलती lottery. है, किसी को लॉटरी मिल चुकी है। Okay, imagine you won a lottery of 100 crores. और ऐसा कल्पना करो कि 100 करोड़ की लॉटरी मिली है, But there is one clause in that lottery. लेकिन उसमें एक जो है शर्त है उस लॉटरी में। It says you can't get that money at once. और ऐसी शर्त है कि वो पैसे आपको एक साथ में नहीं मिल सकते हैं। Every day you will get 1 lakh each. और हर दिन आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। For the next 30 years, you will get 1 lakh every day. और अगले 30 सालों के लिए आपको प्रतिदिन 1 लाख रुपया मिलेगा। I want to tell you that's what Jesus has done. और मैं आपको कहना चाहता हूँ वही चीज यीशु ने की है। You have received something that you could never achieve in your life. आपने कुछ ऐसा पाया है जो आपके जीवन में आप कभी नहीं हासिल कर सकते And थे। every day he releases his grace upon us. और हर दिन वह अपना अनुग्रह हम पर डालता है, उंडेलता है। Amen.
We receive grace upon grace every day on a daily basis और हमें प्रतिदिन हर दिन अनुग्रह मिलता है, until we reach heaven and even in heaven as well. और जब तक कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे और स्वर्ग पहुंचने के बाद भी Because of what Jesus has done, जो यीशु ने किया है उसके we कारण, have won a greater lottery than ever before. और हमने एक बड़ी लॉटरी जीत ली है जो पहले कभी That नहीं we have थी, been forgiven. कि हमें क्षमा कर We दिया have गया है, we have been given heaven as a free gift. कि हमें स्वर्ग मुफ्त दान दिया गया है। Hallelujah. I don't know whether you are glad or not. I am so glad. और मुझे पता नहीं आप प्रसन्न है नहीं या है, पर मैं बहुत प्रसन्न Secondly, हूँ। the दूसरी बात, practical tip. वास्तविक It says, सुझाव, let your gentleness be evident. कि तुम्हारी कोमलता दिखाई दे। Then it says something here. और फिर कुछ लिखा है Verse यहाँ 5, पर, it says, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. वचन 5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। Paul added this 4 letter और पौलुस ने or ये 4 words. 3 शब्द यहाँ पर The जोड़े Lord हैं, is near. प्रभु निकट है। It can have 2 meanings. और उसके 2 अर्थ हो सकते हैं, He is close to you, कि वो तुम्हारे करीब है or maybe his coming is near. या उसका आना करीब है। And God says, Paul says, let your gentleness be evident. और पौलुस कहता है कि तुम्हारी कोमलता दिखाई दे, प्रकट हो। Our Jesus was called the gentle and the humble one. हमारे यीशु को कोमल और दीन ऐसा कहा गया। It says in Matthew 11 verse 28 and 29. और मत्ती के 11वें अध्याय वचन 28 और 29 में He says, come to me all who are weary and heavy burden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you and learn from me. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझ से सीखो। Then it says, for I am gentle and humble in heart. फिर लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। The very core character of our Lord Jesus Christ is one of gentleness and humility. और यीशु मसीह का जो मूल गुण यह था, कोमलता और दीनता। We were at this conference, advanced conference in Mira Road. और हम इस कॉन्फ्रेंस में थे, एडवांस कॉन्फ्रेंस में मीरा रोड में। And Mike Irving, one of our guest speakers, spoke about, we are entering or we are entered into a time of intensified warfare. और माइक अर्विन हमारे वहां पर एक प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि हमने एक गहरे युद्ध के मौसम में प्रवेश किया है। There is a spiritual warfare that is going to be intensified in the coming days. और एक आत्मिक युद्ध है जो आने वाले दिनों में गहरा होने वाला And है। one of the important characteristics that is needed and that will give us victory in the time of war is humility. और एक मुख्य गुण जिसकी हमें जरूरत है इस युद्ध को जीतने के लिए, वो है दीनता। Amen. Today Sunny prophesied about Jesus washing the feet of the disciple. आज सनी ने भविष्यवाणी की कि यीशु चेलों के पैरों को धो रहे थे। This God and King came down and washed the feet of his disciples. और ये प्रभु है जो राजा है, वो नीचे आए और अपने चेलों के पैरों को The धोया। only time the disciple called Jesus as Lord and Master was in the context of washing their feet. और एक ही बार जब चेलों ने यीशु को प्रभु और स्वामी कहकर बुलाया, वो इस संदर्भ में था कि यीशु ने चेलों के पैरों को धोया। As he washed their feet, the disciple called him. He says, Lord and Master, wash us clean from head to toe. और जैसे उन्होंने उनके कदमों को धोया तो चेलों ने कहा
कि प्रभु स्वामी हमें धो दीजिए और हमें शुद्ध कर In the दीजिए। context of servanthood, in the context of humility, God will reveal of himself more and more to us. और दीनता और सेवकाई के संदर्भ में परमेश्वर और भी ज्यादा अपने आप को हम We पर must प्रकट pray करेगा। that God will make us gentle and a humble people. और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसे We कोमल must और be, दीन लोग we बनाएगा। must be gentle in the way we deal with others. और जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसमें हमें कोमलता शामिल I करनी होगी। want to speak to some of the husbands here. मैं कुछ पतियों से यहाँ पर जो है How do उनसे you बात deal करना with your चाहता हूँ। wife? आप अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं? Are you dealing with them in gentleness? क्या आप कोमलता से उनके साथ व्यवहार करते हैं? If you want to be more like Jesus, be gentle with your wife. और अगर आप यीशु की तरह और भी होना चाहते हैं तो अपनी पत्नी के साथ कोमलता से व्यवहार You know, कीजिए। Jesus never spoke harshly to any women in the Bible. आप जानते हैं यीशु ने किसी भी महिला से बाइबल में कठोरता से बात नहीं की। He was gentle with them. वह महिलाओं के साथ He was नम्र था, angry with कोमल the था। Pharisees and the Sadducees and the teachers of the law. When it came to women, he was so gentle with them. और वो फरीसियों से और सादुसियों से और न्याय को सिखाने वालों से गुस्सा रहा, लेकिन महिलाओं के साथ वह बहुत नम्र था, कोमल था। Men, we need to learn. पुरुष हमें सीखने की Be जरूरत है, gentle, कोमल रहे। not only with women, but with everyone. केवल महिलाओं के साथ नहीं How लेकिन you सभी speak के to your साथ। children, आप आपके बच्चों के साथ how you कैसे speak बात to your करते हैं, neighbors, your colleagues. आपके पड़ोसियों के साथ और आपके साथ काम करने वालों के The साथ more कैसे you बात walk करते in हैं। humility, you display the characteristic of Jesus. और जितना आप दीनता में जीवन जिएंगे आप यीशु के चरित्र को प्रकट करेंगे। Thirdly, तीसरी बात, practical tip, कुछ वास्तविक सुझाव get rid of anxiety. और चिंता से छुटकारा It says, do पाइए। not be anxious about anything. और ऐसा लिखा है किसी भी बात की चिंता मत Paul करिए। is saying at the end of his letter, he says, I'm in prison, I'm not anxious. और पौलुस अपने खत में अंत में लिखता है कि मैं कैद में हूँ और मैं चिंतित नहीं I हूँ। don't know whether after 2-3 days I will be executed. What is going to happen? I will be killed. I don't know, but I'm not anxious. वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि 2-3 दिन में क्या होगा, शायद मुझे मार दिया जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। But one thing I know, लेकिन एक चीज मैं but in जानता हूँ, every situation with prayer and petition, with thanksgiving, I present my request to God on a daily कि हर एक basis. स्थिति में प्रार्थना और निवेदन के साथ और धन्यवाद होते हुए मैं मेरे निवेदन को परमेश्वर के सामने He लेकर आता submits हूँ his life to God on a daily basis. और अपने जीवन को वो प्रतिदिन परमेश्वर के अधीन Then it रखता says the है। peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. और फिर लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है वो आपके हृदय को और मन को सुरक्षित रखेगी। Don't worry, the Bible says. और बाइबल कहता है कि चिंता मत करो। Jesus too said that in Matthew 6. और मत्ती के 6 अध्याय में यीशु ने भी ये कहा है। It says, therefore I tell you, verse 25, it says, do not worry about your life, what you eat or drink, what about your body, what you will wear. और मत्ती के 6 अध्याय वचन 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि हम क्या And पहनेंगे। it goes on. और फिर आगे लिखा है, And he says, look at the birds of the air, look at the sparrow. और लिखा है कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो, They neither sow nor reap, वो ना तो बोते हैं न काटते हैं, but the heavenly Father looks after them. लेकिन स्वर्गीय पिता उनकी जरूरतों को How पूरा much करता more है। important you are, and will he not look after you? तो आप कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या वो आपका ख्याल It नहीं says, रखेगा। don't worry about your food, clothes, and your life in itself. और लिखा है अपने खाने के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो, But pray, लेकिन प्रार्थना करो। bring your petition to God, अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने because रखो, God will answer your prayers क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का and he will उत्तर fill you देगा with peace. और आपको शांति से भर देगा। Amen.
That's why Jesus taught us in his prayer. He says, give us today our daily bread. इसलिए यीशु ने प्रार्थना ऐसी सिखाई है कि आज की रोटी हमें दे प्रभु। Amen. Are you worried about something? क्या आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? I know most of us are. मुझे पता है हमें से ज्यादातर लोग Why चिंतित don't हैं। you close your eyes? क्यों ना आप आपकी आंखों को बंद Just करें, close your eyes आंखें बंद करें and pray the very thing to God. और वो प्रार्थना आप परमेश्वर से God, कहें। I'm bringing this petition to you. कहे प्रभु ये निवेदन मैं आपके सामने I रखती हूँ, bring this prayer to you, ये Lord. प्रार्थना आपके सामने I लेकर bring आती this हूँ worry to you. और ये चिंता आपके सामने रखती हूँ। Lord, hear me प्रभु मुझे सुन and fill me with your peace. और तेरी शांति से मुझे भर दे। Can you just pray? क्या आप प्रार्थना कर सकते Maybe हैं? it's your health. शायद आपका स्वास्थ्य Maybe हो, it's finance. शायद आर्थिक स्थिति हो, Maybe it's your children. या आपके बच्चे हो, Maybe it's your studies. या आपकी पढ़ाई हो, Maybe it's your job. या आपका काम हो, Maybe it's your marriage. या आपकी शादी हो, Maybe it's some unanswered prayer. या ऐसी कुछ प्रार्थना है जिसका उत्तर नहीं मिला हो। You pray to him. आप उससे प्रार्थना कीजिए। Lord, fill us with peace, Lord. Fill us इस with शांति peace. से हमें भर दो प्रभु। Even as we brought our petitions to you, Lord, I pray, let your peace fill our hearts and our minds. जैसे हमने आप हमारे निवेदन आपके सामने रखे हैं, आपकी शांति हमारे हृदय और मन को भर दे प्रभु। Amen. Amen. Quickly, Amen. 3 more. तीन और बातें जल्दी से। Fourthly, it says, use a good mental concoction. और ऐसा लिखा है कि उचित विचार रखे। Yeah, if you're anybody who has been an alcoholic, you know what this concoction means. और अगर कोई शराबी रहे है तो ये शब्द कॉन्कॉशन का क्या अर्थ है वो आप This is जानते mixing होंगे। all the drinks. और उसका अर्थ है कि सभी In तरह the, तरह की शराबों को Paul मिलाना। says here about, how to think. यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि कैसे सोचना है, आपके विचार You want कैसे to be होने चाहिए। mature? If you आप want to be परिपक्व होना mature, चाहते हैं think about these things. तो इन बातों के बारे में सोचिए। 8 ingredients is given here 8 सामग्री है जो यहाँ पर दी for गई है good mental health. और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हो It इसके says, लिए। think about that which is true. और जो सच है उसके बारे में Think सोचिए, about what is noble. जो महान है उसके बारे में Think about what सोचिए, is right. जो सही है उसके बारे में Verse सोचिए। 8 I'm talking about. 8वें वचन के बारे में मैं बात कर Think रहा about हूँ। what is pure. जो पवित्र है या शुद्ध है Think उसके about बारे what में is सोचिए। lovely. और जो प्यारा है उसके बारे Think में about what is सोचिए। admirable. और जो सराहनीय है उसके बारे में Think about सोचिए। what is excellent. और जो उत्तम है उसके बारे में सोचिए। Think about what is praiseworthy. और जो प्रशंसा योग्य है उसके बारे में In a सोचिए। way, Paul is saying, discipline your mind to think correct. और एक तरह से पौलुस कह रहा है आपके मन को अनुशासन में डालिए कि सही विचार आपके मन में हो। As you begin to change the way you think, God, Bible is saying He is going to make you mature, and He's going to give you peace, and He's going to give you joy, and He's going to make you fruitful. और बाइबल कहता है कि जैसे आप सही तरीके से सोचना या विचार करना सीख लेंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा और आप फलवंत हो जाएंगे। Indian mentality is we think more. और भारतीय सोचने का तरीका ऐसा है कि हम ज्यादा सोचते हैं। If you see somebody near the bar, somebody is walking towards, walking past, and he stand near the bar, he's thinking, what to buy. Maybe I need to buy vegetable. And if you see him, your first thought is, वो कुछ दारू खरीदने के लिए जा रहा है। और अगर आप किसी को बार के पास से गुजरते हुए देखते हैं और वो व्यक्ति वहां खड़ा है, सोच रहा है कौन सी सब्जी खरीदूं, तो अगर आप उसे देखेंगे पहला विचार आपके मन में आएगा, हाँ ये बाहर जाने वाला है। नहीं बाहर जाएगा और दारू खरीदेगा। The Bible says don't think like that. और बाइबल कहता है आप ऐसे मत सोचिए। Don't assume things. और बस
खुद मत चीजों को समझ लीजिए, Yeah, because it is going to lead you on a wrong path. क्योंकि वो आपको गलत मार्ग में ले जाएगा। Think what is right. और जो सही है वो सोचिए, Think that is lovely. और जो प्यारा है उसके बारे में Even when सोचिए। you see somebody is doing something wrong, think the good thing about him. Don't think the bad what he is doing. और अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, तब भी आप उसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वो सोचिए, जो वो गलत कर रहा है वो मत That's सोचिए। what Paul is saying. पौलुस यही कह रहा है। It says, change the way you think. वो कहता है अपने विचारों को, अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। We become what we think about. और जिस तरह से हम सोचते हैं या जो हम सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। Success is a state of mind. If you want to see success, start thinking about the way God thinks of you. और कामयाबी जो है वो मन की स्थिति है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जैसे परमेश्वर आपके बारे में सोचता है वैसे आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। Hallelujah. You know, we can't always control our circumstances, but we can control our own thoughts. और हम स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। Proverbs 23 verse 7 says, for as he thinks within himself, so is he. और नीति वचन का 23वां अध्याय वचन 7 में लिखा है कि वह जैसे अपने भीतर सोचता है वह वैसा है। For as he thinks within himself, so is he. क्योंकि जैसे वह अपने अंदर सोचता है वह वैसा है। You know, if you think you're useless, अगर आप सोचेंगे कि आप बेकार है that's what you end up with. तो आप वैसे ही हो जाएंगे। If you think that, you know, God's hand is upon me, he's got a purpose for my life, he's got a vision for my life, he will do things that is good for me, and I believe, you know, things will change in your life. अगर आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, उसके लिए मेरे लिए उसके पास मेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं, तो चीजें आपके लिए बदल जाएगी। Fifthly, 5वीं बात, imitate the good in others. दूसरों में जो अच्छी बातें हैं उसकी नकल कीजिए। You know, Paul says पौलुस कहता है in verse, I think it's verse 9, 9वें वचन में, it says, whatever you have learned जो बातें तुमने मुझसे सीखी or received या ग्रहण की or heard from me और या सुनी or seen in me, या मुझ में देखी, put it into practice. उन्हीं का पालन किया करो। 4 things he says. 4 बातें वो कहता है। You know, whatever you have learned from me, जो तुमने मुझसे सीखा है, whatever you have received from me, जो मुझसे पाया है, what you have seen in me, जो मुझ में देखा है and what you heard from me, और जो मुझसे सुना है, put it into practice. उसे पालन करो। And the God of peace will be with you. और परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। It's so powerful. ये इतना सामर्थ्यशाली है। Jesus said the same thing. यीशु ने वही बात कही। What you seen me doing, जो तुमने मुझे करते हुए go देखा and do है, it. जाओ और उसे करो। I have done what I saw my father doing. और मैंने वो किया जो मैंने मेरे पिता को करते हुए देखा, You do what you have seen me doing. और तुम वो करो जो तुम मुझे करते हुए देखते हो। You know, when we were children, जब हम बच्चे थे we imitated our parents. तो हम हमारे माता पिता की नकल करते We थे, imitated our teachers and our peers. और हमारे जो शिक्षक थे, हमारे दोस्त थे, उनकी नकल करते थे, Sometimes bad things also. और कभी कभी गलत चीजों की भी नकल Now, करते as we थे। become Christian, we stop imitating. और जब हम मसीह बन गए तो हमने वो नकल करना He छोड़ says, you know, दिया। I want to be authentic. I want to be, you know, I want to be a self-made man or a हम कहते self-made हैं woman. कि हम प्रामाणिक होना चाहते हैं और सच्चे होना चाहते हैं और खुद को बनाने वाले ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं। But I want to say, you know, be a man who will be shaped by this word. लेकिन मैं कहूंगा ऐसे व्यक्ति बने जो इस वचन से आकार पाएंगे। May you become, you know, like what the Bible talk about. आप वैसे बन जाए जैसे बाइबल बात करती है। Amen. We don't want you to imitate mannerism or lifestyle or dressing. हम नहीं चाहते कि आप लोगों का जो रवैया है या कपड़े पहनने का तरीका है उसकी नकल करें।
You know, we see Western movies and things like that, and we want to be Western in many ways. और हम ऐसे पश्चिमी पिक्चर देखते हैं और एक प्रकार से हम उस तरह से बनना चाहते हैं That's उनकी not the तरह। Bible says, imitate. और बाइबल नहीं कहता कि यह नकल करे। And the Bible talks about imitating someone's character, his teaching, his godliness, his Christ likeness. और बाइबल कहता है कि किसी के चरित्र को या किसी की जो भक्ति है या जो यीशु की तरह वो है उसकी आप नकल कीजिए। Finally, और अंत में learn to be content. आप संतुष्ट होना सीख लीजिए। Yeah, it says learn to be content in life. और ऐसा लिखा है कि जीवन में संतुष्ट रहना सीख लीजिए। Paul is saying, you know, I've learned the secret of contentment. और पौलुस कहता है कि संतुष्ट रहने का रहस्य मैंने सीख लिया है। You know, it's a great virtue to pursue. और एक महान गुण है ये जिसके पीछे हमें चलना It's a चाहिए। secret to life success. और जीवन की कामयाबी के लिए यह एक रहस्य है। And if you want to be mature, और अगर आप परिपक्व होना you चाहते got to be हैं content with your own life, तो आपको आपके जीवन से संतुष्ट होना सीखना your होगा। own identity, अपनी पहचान के साथ your own upbringing, या आपको पालन पोषण के your own साथ giftings and grace that God has given you, और आपके जो वरदान है और अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपको दिया है your body, you got to be content with what body that God has given to you. और आपका शरीर जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको लेकर आपको संतुष्ट होना And your होगा। gender, if you're a woman, be happy as a woman. और आपका जो अगर आप महिला है तो आप खुश रहिए कि If you're आप a, एक if महिला you're a है। man, be happy as a man. और अगर आप एक पुरुष है तो खुश रहिए कि You know, आप एक today पुरुष the है। biggest problem the Western world is facing, girls wants to be boys and boys wants to be girls. और आज सबसे बड़ी समस्या जो पश्चिमी जगह पर लोग सामना कर रहे हैं ये है कि महिला पुरुष होना चाहती, पुरुष महिला होना चाहता है। Yes or no? हाँ या नहीं? It's coming to India as well. और अब ये भारत में भी आ रहा है। You know, I feel like a girl, you know. मुझे लगता है मैं लड़का हूँ। Yes or no? हाँ या नहीं? Be happy as you are. आप जैसे हैं वैसे आप खुश If you're a रहिए। girl, celebrate you're a girl. और अगर आप एक लड़की है तो उत्सव मनाइए कि आप एक लड़की है। Yeah, if you're a man, celebrate you're a man. और अगर आप एक पुरुष है तो आनंद मनाइए, Paul उत्सव is saying- मनाइए। Paul is saying, I learned the secret of contentment. और पौलुस कहता है कि मैंने संतुष्ट रहने का रहस्य सीख लिया है, In little and in plenty. थोड़े में भी और बहुतायत में भी। Yeah, I want to tell you, Christians can be so happy people if we know, God, what you've given me, you're not made a mistake. और मैं बताऊं मसीह लोग खुश लोग हो सकते हैं और ये कहते हुए कि प्रभु जो तुमने मुझे दिया है तुमने कोई गलती नहीं की My है। father and mother are the best that you could have ever given to me. और मेरे माँ बाप सबसे उत्तम है जो तुमने मुझे दिया है। Yeah, my brothers and sisters, they have pain in the neck, but that's the best that you have given to me. मेरे भाई और मेरे बहन मुझे बहुत तकलीफ देते हैं लेकिन वो सबसे उत्तम है जो आपने मुझे दिया है। Amen. Yeah, we will be so happy people. तो हम इतने आनंदित ऐसे लोग हो जाएंगे। You know, Paul was a person, he worked hard. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था उसने मेहनत की He did the greatest miracles and greatest things in the Bible, और but he never lived on someone else's money. सबसे बड़े चमत्कार और बातें उसने की है जो बाइबल में है लेकिन वो कभी किसी और के पैसों पर निर्भर नहीं रहा, And he supported others. लेकिन दूसरों को मदद करता He रहा was a tent maker. और वह घर बनाने वाला 6 था। months he would work, 6 months he would preach. और 6 महीने वो काम करता था और 6 महीने वो प्रचार करता था And he was content. और वह संतुष्ट था। Hallelujah. Paul is saying, I'm telling you a secret. और पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। He's telling the church in Philippi, और फिलिपाई में जो कलीसिया है उनसे वो कह रहा है learn the secret of contentment. और संतुष्ट रहने का रहस्य 1 सीख लो। Timothy chapter 6, 1 तिमुथियुस का 6वां it अध्याय says, godliness with contentment is a great gain. और वहां पर लिखा है पर संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। I'll finish here.
और मैं यहाँ पर पूरा करूंगा। In verse 13, Paul says this. और 13वें वचन में पौलुस यह कहता It है, says, I can do all things through him who gives me strength. और ऐसा लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. आमीन। I can rejoice. मैं आनंदित हो सकता हूँ I can be gentle. और मैं कोमल हो सकता I'm हूँ not anxious. और मैं चिंतित नहीं हूँ I am imitating Christ. और मैं यीशु की नकल कर रहा हूँ I'm content with my life. और मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ And I'm thinking right और मैं सही सोच रहा हूँ, because Christ strengthens me. क्योंकि यीशु मुझे मजबूती देता है। Amen. His आमीन। grace is available. उसका अनुग्रह उपलब्ध है, His power is available. उसका सामर्थ उपलब्ध है। And God wants us to become mature. और परमेश्वर चाहता है कि हम परिपक्व बने। How will we plant churches? हम कलीसियाओं को कैसे बोएंगे, How will we advance the gospel हम कैसे सुसमाचार को फैलाएंगे if we are not mature? अगर हम परिपक्व नहीं May है God तो। make us mature. परमेश्वर हमें परिपक्व बनाए। Meditation of this book has encouraged you. और इस किताब का जो हमने अध्ययन किया, आशा कर रहा हूँ Come, आप let's प्रोत्साहित stand. हुए Let's हैं। stand. आइए हम खड़े हो जाएं। Father God, we just want to thank you for Paul's life. पिता परमेश्वर, पौलुस के जीवन के लिए हम आपको Thank you धन्यवाद for his करना चाहते letters. हैं, उसके पत्रियों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for the body of truths that he labored to bring it across to us, Lord. और प्रभु, जो सच्चाई प्रभु उसने मेहनत की ताकि वो हम तक सच्चाई लेकर आए। And these practical tips, Lord God. और प्रभु ये उपयोगी सुझाव, Lord, help us, we pray. हमारी मदद करो, हम प्रार्थना Give us करते हैं grace, प्रभु, Lord God. हमें अनुग्रह दीजिए। Give us grace to be content in our life, Lord और God. अनुग्रह दीजिए कि हम जीवन में संतुष्ट रहे। Lord, help us to rejoice, Lord, in हमें you. आनंदित, आप में आनंदित रहने में Make मदद us more कीजिए। like Jesus. हमें यीशु की तरह बनाइए। और Thank भी you for this time. धन्यवाद इस समय के We लिए। bless you in Jesus' name. आपको आशीष देते हैं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।